حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ تھوڑی خاموشی بہت سے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھڑیاں خطرناک ہوتی ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ تم کو وہی ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے، سب سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں کم پڑ جاتی ہے اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ برا کر کے اللہ سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو ایک خوشگوار زندگی دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نام ہے، العدل بھی ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ جو آپ آج لوگوں کو دے رہے ہیں کل اسے واپس لینا پڑے گا۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے ان کے منتظر ہے، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گاہل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے خبر۔ وہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کیونکہ وہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ کبھی یوں ہی اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ معافی بھی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے جو ان پر قابو پا لیتا ہے۔ وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمارے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کتنے عجیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو من مرضی کی زندگی جیتے ہیں بنا کسی روک ٹوک کے، لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور کتنے پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
अल्लाह तेरी रजा है कहकर खुश रहते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। जब अल्लाह नाराज हो तो हर चीज उदास और वीरान लगती है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रजा होती है। इसीलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं ना, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ दी जाती है, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। उन पर अल्लाह के लिए दिल को राज़ी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है और मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है ना। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर उसके रंग में किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं लगता। अपना राब्ता अपने अल्लाह के साथ मजबूत रखो। ये वो राब्ता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद आंसू रख के जो चाहे वो ले ले। बेशक बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हम कमज़ोर और खताकार हैं, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम पर रहम फरमा, हमारे दानिशा और गैर दानिशा गुनाह माफ़ फरमा। हमें खसारा उठाने वालों में ना कर, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से भर दे। आमीन। हर इंसान को उसके माजी के किसी एक वाक़ये ने इतना बदल दिया है कि वो कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसे वो पहले वाक़ये से था। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर उसका किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। उसकी अच्छाई और बुराई उसकी ताल्लुक़दारी में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा किरदार खुशबू की तरह होता है जो चाहने वालों के ज़हनों को मुअत्तिल कर देता है। जिसे सच में आपकी परवाह होगी वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मेरा दिल करता है उसे कहूँ कि जब मैं बेचैनी के आखिरी दर्जे पर थी, जब कोई भी मुझे समझाने वाला नहीं था, फिर मैंने कलामे अल्लाह को थामा। मेरा दिल करता है मैं खामोशी से उसके कुरान पाक दूँ और कहूँ कि इसको ज़हन के मुताबिक समझना सीखो, इसी में हर दर्द की दवा है। जो लोग दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगी, जैसा भी हो गुजर जाता है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। कुछ लोग आपके साथ वफादार नहीं होते बल्कि वो आपके साथ जुड़ी अपनी ज़रूरतों के वफादार होते हैं। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो इन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। जब दिलों से इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो अल्लाह ताला की थी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ उस रब की इमानत है जिसने इस कायनात की किसी शे को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि वो आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि उस कायनात का रब है। अपने जज्बात को अपने अंदर रखना सीखे। कोई तवज्जो ना दे तो तवज्जो की भीख ना मांगे। कोई बात ना करे तो 10 कदम पीछे हट जाए। कोई आपकी तरफ ना देखे तो उसे मजबूर ना करे। ये दुनिया आपकी मुखलिस जज्बात आपके मुंह पर मारने में माहिर है, इसीलिए अपने आप के साथ खुश रहना सीखें। सिर्फ अल्लाह ताला ही मसाइल को हल कर सकता है, ज़रूरियात सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक असल वही याद रहता है जो वक्त और लोग पढ़ाते हैं। माफ़ तो बार बार किया जा सकता है लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो एहसास मोहब्बत उनमें भी नज़र आता है। अपने रिश्तों को सलीके से जोड़ना सीखे, अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान को आधी से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाती है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन खुद उसे साबित कर देगा। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। वक्त, मोहब्बत और ताल्लुक़ खरीदा नहीं जाता, लेकिन उसके खो जाने के बाद कदर व कीमत का एहसास होता है।
इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाया कर देता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पर रब का शुक्र अदा करे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। और फिर कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा होने पर दम घुटने लगता है। ऐ मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मुस्तकबिल में मेरे लिए दुख की वजह बने। तू चाहता है तेरी हर बात पे वो कुन कह दे, उसके किस किस बुलावे पर तूने लब्बई कहा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। उससे इतनी मोहब्बत तो करे इंसान के खुद को गुनाहों से बचा ले। खुद की इतनी परवाह तो करे इंसान कि उसको फिक्र हो कि आग में जलने से बच जाऊं। इतनी मोहब्बत तो कर इंसान खुद से कि क़यामत के दिन बेइज्जत होने से डरे, अपने दिल के सख्त और स्याह होने से डरे। खुद से इतनी मोहब्बत तो करे इंसान के जन्नत में बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करे। खुद की इतनी फ़िक्र तो करे इंसान कि वो इतना प्यारा मोमिन बंदा बन सके कि अल्लाह को वो पसंद आ जाए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, अकील अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। अकील कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। जिंदगी के जिस भी मकाम पर आप हैं उसे तस्लीम कर लें और ये भी तस्लीम कर लें कि यहाँ आप हमेशा नहीं रहेंगे। दरअसल जो मकामे शिकवा है वही मकामे सब्र है। बाप ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। उदास ना हो, अल्लाह है ना तुम्हारे साथ। पता है जब वक्त और हालात साथ नहीं देते तब जिंदगी का असल मकसद समझ आता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे रब से जोड़ती है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। मिलेगा क्या दिलों में नफरतें रखकर, बड़ी मुत्तसिर सी जिंदगी है, मुस्कुरा के मिला करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। माजी कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे इंसान को कितना ही क्यों ना बदल जाए। जब इस कदर बड़े गुनाह किए होते हैं तो वो सामने ज़रूर आते हैं। जुल्म की उम्र बहुत लंबी ही क्यों ना सही, आखिरकार दम तो ही निकल जाता है। इंसान जुल्म करते करते भूल ही जाता है कि एक ना एक दिन उसका इख्तिताम होगा। शायद बाज़ दफ़ा चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें नज़र आती है। ये नज़र का कसूर नहीं होता, ये वक्त का कसूर होता है जो हर शय सही वक्त पर ही आशिकार करता है। ये जिंदगी एक तमाशा है और ये दुनिया तमाशाई। इन्हें खुश करने लगोगे तो तमाशाई बनकर रह जाओगे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में इन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के आहिल हो। हम इंसान बहुत नाशुक्रे हैं। हम हमेशा ज़्यादा की उम्मीद करते हैं जबकि अल्लाह पाक हमें हमारी ज़रूरत जितना नवाजता है। पता है इस एहसास से तन्हाई का क्या मतलब है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन तुम्हारे दिल पर फिर भी उदासी छा जाती है। बज़ाहिर सब ठीक लग रहा होता है लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जाती है। सब आसपास होते हैं लेकिन तुम्हें अजीब सी तन्हाई घेरी होती है। सब ठीक होके भी ठीक नहीं होता और तब तुम बेबसी की दलदल में आ फंसते हो। ये एहसास से तन्हाई बार बार क्यों सताता है। तुम नमाज भी पढ़ते हो, तुम
तुम कुरान भी पढ़ते हो, तुम सबसे हुस्न तरीके से पेश आने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये उदासी बेसुकूनी क्यों खत्म नहीं हो रही? क्या पता अल्लाह ने तुमसे कोई काम कहा हो और तुमने वो ना किया हो। क्या पता कुरान से तुम्हें कोई हुक्म मिला हो और तुमने अमल ना किया हो। क्या पता तुम कुरान तो पढ़ रहे हो लेकिन हदायत ना ले रहे हो। ये बेसुकूनी रिमाइंडर है तो जो तुम्हें तवज्जो इस तरफ दिला रही है जिसे तुम भूल बैठे हो। जब हमसे ऐसा होता है तब हम अनजाने में खुद को अल्लाह से दूर कर देते हैं। हम अनजाने में अल्लाह की बात को अहमियत ना देकर उससे दूरी का रास्ता इख्तियार कर बैठते हैं और तभी ये बेसुकूनी अलार्म बजने लगता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई अच्छी बात पता चले तो हम उसे किसी अगले पल के लिए ना देते हैं। हम सोचते हैं कि उसे बाद में कर लेंगे और फिर बाद में फरामोश कर बैठते हैं। और फिर जब हम अल्लाह को दूर कर देते हैं तो हम तन्हा हो जाते हैं। ये बेसुकूनी, ये बिला वजह का अकेलापन, ये एहसास-ए तन्हाई, हर शख्स हर शे की मौजूदगी के बावजूद भी किसी कमी का एहसास, ये अल्लाह से दूरी ही का तो नतीजा है। ये वो एहसास है जिसे दुनिया की और कोई शे भी नहीं कर सकती। पता है तब क्या करना होता है? ऐसा तब होता है जब बज़ाहिर तो हम सीधे रास्ते पर होते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में भटक जाते हैं। तब किसी और के पास जाके ये सवाल करने से कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, फिर भी बेसुकूनी है, क्या अल्लाह ताला नाराज़ है? ऐसे सवालात के जवाब कहीं दूसरे से नहीं मिलेंगे। आपका दिलो दिमाग जानता होता है कि खराबी कहाँ है। अक्सर वो कोई ऐसी बात होती है जिसे बज़ाहिर मामूली समझकर हम फरामोश कर रहे होते हैं। अक्सर अल्लाह के किसी हुक्म की नफ़ी हो रही होती है। अक्सर नफ्स अल्लाह के हकाम के आड़े आ रहा होता है और कहीं ना कहीं हमारा दिलो दिमाग जानता है कि वो क्या है, तब उसे खुद से दूर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह नाराज़ हो गया है और अब तुम मायूस होके बैठ जाओ। तुम्हें तो अपने अल्लाह को फिर से राज़ी करना होगा, तुम्हें तो अपने अल्लाह के फिर से करीब जाना होगा। तुम्हारे पास तो तौबा का ऑप्शन आखिरी सांस तक सही सलामत पड़ा है, उसे जितनी मर्जी दफ़ा चाहे इस्तेमाल कर लो। पता है सूरत अल-काफ में अल्लाह ताला ने सूरत अल-काफ में क्या फरमाया है? और किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करें कि मैं ये काम कल ज़रूर कर लूँगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे, ये नहीं इंशाअल्लाह लाजमी कहा करें। पता है ये आयत कब नाजिल हुई थी? तब जब प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सवालात के जवाब में कहा था कि बाकी सवालात के जवाबात मैं कल दूंगा। तब ऐसा हुआ कि कई रोज़ तक आप पर वही नाजिल नहीं हुई थी। कफ़ार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाने लगे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बहुत परेशान हो गए थे और तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की थी। तुम्हें क्या करना होगा फिर? तुम्हें भी हर अच्छे काम के इरादे पर इंशाअल्लाह कहना होगा। जब भी तुम्हें कुरान से कोई हुक्म मिले तुम्हें कुरान से उसे पूरा करने का अहद करके इंशाअल्लाह कहना होगा। तुम्हें अल्लाह की मदद हर काम में शामिल करना होगी। और पता है फिर अगली आयत क्या नाजिल हुई थी? और अपने रब को याद कर लिया कीजिए जब आप भूल जाएं। इंसान की फितरत है कि वो भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुश्किल भी आसान कर दी। जैसे ही तुम्हें बेसुकूनी या किसी गलती का कोई अलार्म बजना महसूस हो तो तुम फौरी अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लो। तुम जिक्र इलाही में मशगूल हो जाओ और पता है सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है। आओ हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह तमाम इंसानों पर रहम फरमा, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इंसानियत को तमाम बीमारियों और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज फरमा। हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत गंदे हैं। मेरे मालिक हम पर तेरे बंदे हैं, तू बड़ा रहम करने वाला बड़ा करीम है। मेरे मालिक अपने गुनाहगार बंदों पर रहम फरमा। आमीन।